Good morning class 12. Welcome back to our online classes. Today we are going to do the NCERT exercise. In the last video we have started the NCERT question answer of chapter number 4, and today continuing that video we will complete this chapter. In last class we have discussed about the question number 1 to question number 10. 11, 12 and 13 was your homework. Today we are going to do from question number 14, and this is your additional exercise of chapter number 4, that is a moving charge and magnetism. Let me start the chapter, let me start the exercise and start with our video. Now let me see what the question is given here. The question is given here: two concentric coil of radius 16 centimeter and 10 centimeter respectively. What you mean by the concentric? You should know about the concentric. Concentric means with the same center, two coil of a same center. When the center is same here, then we can say this is the concentric circle. Now the next is given here: lie on the same plane containing north to the south direction. The direction of plane is given here from north toward the south. This is the plane. ये हमारा प्लेन है जिसकी डायरेक्शन ऊपर नॉर्थ की है, नीचे साउथ की है. द कॉइल एक्स हैज़ अ 20 टर्न्स. कॉइल x हम सपोज कर लेते हैं ये कॉइल हमारा x है और ये हमारा y है. द कॉइल x हैज़ अ 20 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 16 एम्पियर. कॉइल x में 20 टर्न्स है और 16 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो कर रहा है. एंड द कॉइल y हैज़ द 25 टर्न्स एंड कैरीज अ करंट ऑफ 18 एम्पियर. कॉइल y में 25 टर्न्स हैं एंड उसमें करंट कितना है? 18 एम्पियर है. द सेंस द करंट इन x इन एंटी क्लॉकवाइज. एक्स में करंट की डायरेक्शन क्या है? दिस इज इन एंटी क्लॉकवाइज एंड इन वाई इट इज इन अ क्लॉकवाइज. वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन एट द सेंटर. सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा. फर्स्ट वी लेट नोट डाउन व्हाट द डेटा इज गिवन हियर फॉर द कॉइल. इफ वी टॉक अबाउट द टू डिफरेंट कॉइल, फॉर कॉइल एक्स and for coil y, let me see what the data is given here. The radius is r1 is here 16 centimeter. For coil x, r1 is here 16 centimeter and r2 is here 10 centimeter. Now the coil x has a 20 turns. The number of turns for the coil x, n1 is here 20 turns and n2 is here carries a 25 turns. N1 carries 20 turns and N2 carries 25 turns. Now X coil carries a current of 16 ampere. Then the current is given here. Current I1 is 16 ampere and I2 is here. Current carries a 18 ampere. Now first we are going to find the magnetic field. What will be the magnetic field and the direction in the coil x, and what will be the magnetic field with the direction in coil y. Then magnetic field for x, then B for x. Magnetic field for x, we know the formula. The formula is mu naught n I n1 I1 upon twice r1. This is the formula for magnetic field in a x. Now find the value. We know value of mu naught is here twice pi into 10 power minus 7, and n1 is here, the value of n1 is here 20 turns. 20 turns into current is here 16 upon, here the radius is 16 centimeter. Then we will do in a meter. Then it will be here 16 into 10 power minus 2 into 2 is given here. Now solve it. We can cancel out. 2 tens are 20, 2 8 times 16. We will solve, we will get the answer 4 pi. Here we can see here it is a 8 to the 16. Okay, 16 centimeter is given here, 8 to the
16. Any more 2 is here? Okay, solve it. We will get the answer. 4 pi into 10 power 4 pi into 10 power minus 4 Tesla, and the direction will be towards east. How it could be the direction? डायरेक्शन हमने ईस्ट की तरफ कैसे कर दिया? उसने बोला है कि ये प्लेन जो हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ अपवर्ड एंड साउथ डाउनवर्ड्स, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट? इट विल बी आउटवर्ड्स. हमारे ईस्ट की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा पेपर के, और वेस्ट की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा पेपर के. इन द केस ऑफ द कॉइल एक्स, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज लाइक दिस. देन इफ वी टॉक about the direction of current like this, it is like this. Then what will be the direction of magnetic field? It will be the direction to the outwards to the paper. हमारा डायरेक्शन x में करंट का ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? बाहर की तरफ होगी. और ये कौन बताता है? ये हमें मैक्सवेल्स थंब रूल बताता है. तो बाहर की तरफ हमारा डायरेक्शन क्या था? ईस्ट था, इसलिए इसका डायरेक्शन ईस्ट हो गया. Now let we talk about the magnetic field in the case of coil Y. Then in the case of coil by B2 is equal to twice mu naught Ni, mu naught N2 I2 upon twice R2. Put the value and solve it. What will be the value of B2? You will get here value of mu naught, that is a twice pi into 10 power. Sorry, it will be a mu naught is here 4 pi. It will be a 4 pi into 10 power minus 7. Here it will be also a 4 pi. And it will be a 2, 10 power minus 7, and N2 is here 25, I2 is here 18 ampere upon R2 is here 2 into R2 is here 10 into 10 power minus 2. If we will solve this equation, we will get 9 pi into 10 power minus 4, and the direction is towards west direction. वेस्ट डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? अगेन इफ वी टॉक अबाउट द एंटी क्लॉकवाइज, देन द डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द पेपर, इनवर्ड्स टू इनवर्ड्स द पेपर, अंदर की डायरेक्शन में होगा. अब देखो, वेस्ट की डायरेक्शन में 9 पाई आ रहा है, 9 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4 आ रहा है. ईस्ट की डायरेक्शन में 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4 आ रहा है. कौन सी बिगर वैल्यू है? बिगर वैल्यू है B2. देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वैल्यू? वी विल सी द रिजल्टेंट इज हियर. If the B2 is greater, then resultant will be identified with the B2. अगर B2 बड़ा है तो resultant उसका किधर आइडेंटिफाई होगा? B2 की डायरेक्शन में होगा. तो what will be the resultant of magnetic field? B is equal to B2 minus B1. It is here 9 pi into 10 power minus 4 minus 4 pi into 10 power minus 4. The answer will be 5 pi into 10 power minus 4 Tesla, and the direction will be towards west direction. हमने डायरेक्शन वेस्ट क्यों ले लिया? क्योंकि इसकी डायरेक्शन B2 आइडेंटिफाई करेगा, और B2 की वैल्यू ज़्यादा है, ग्रेटर है, तो ये B2 को फॉलो करेगा. सो डायरेक्शन विल बी टूवर्ड्स द वेस्ट. ओके, दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 14. लेट वी सी द अनदर क्वेश्चन. क्लास, now let we see the question number 16. 15 is your homework. Let we see the question number 16. That is the very important question, and this is some complication. It consists of some type of a complication. Let we see here what is the question number 16. It is given here magnetic field at a point on the axis B is the given by mu naught I r square n upon twice x square plus r square power 3/2. That we have proved in the last some classes. You can go through the playlist and you can find there what is the solution of this derivation. इस डेरिवेशन को हमने डिराइव करके प्रूव किया था. यानी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, फर्स्ट ए पार्ट इज हियर, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2. It is said here so that it reduces to the familiar रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर. उसने बोला कि इसका हमें रिजल्ट बताना है
कि व्हाट विल बी द रिजल्ट एट द फील्ड एट द सेंटर। बहुत इजी है, हमने डेरिवेशन में भी किया था कि फील्ड एट द सेंटर निकालने के लिए वी विल डू द x इक्वल टू 0, देन फील्ड एट द सेंटर विल बी म्यू नॉट आई आर स्क्वायर एन अपॉन ट्वाइस आर स्क्वायर पावर 3/2, it will be like this, r square power 3/2, 2 and 2 is cancel out, we will get that mu naught I r square n upon twice r cube, r square n, r cube is cancel out, then what we will get answer here, we will get here mu naught I into n upon twice r. दिस इज द फॉर्मूला एट द सेंटर ऑफ अ फील्ड, ये हमारा सेंटर ऑफ द फील्ड का फॉर्मूला है। टेक द स्क्रीनशॉट सो यू विल बी एबल टू नोट डाउन इजिली। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आसानी से इसको आप नोट डाउन कर लोगे। नाउ लेट मी सी द सेकेंड पार्ट, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट वन। द बी पार्ट इज गिवन हियर, ही इज टॉकिंग अबाउट द हेल्महोल्ट्ज कॉइल। इसको मैं ऊपर नोट कर लेता हूँ सो वी कैन राइट इजिली। यहां पर बी पार्ट दिया हुआ है, दिस इज हियर व्हाट वी नीड टू प्रूव, वी नीड टू प्रूव हियर b is equal to 0.72, it is a minus mu naught b n I upon r. This is the formula here that we need to prove here. Now see here, b will not be here, ये b यहाँ पे नहीं होगा, mu naught n I upon r, it is in the form of multiplication like this। इसको ऐसे कर लो, ये मल्टीप्लाइड फॉर्म में होगा, इस तरह फॉर्मूला होगा, हमें ये प्रूफ करना है। इट इज गिवन हियर, कंसीडर टू पैरेलल कोएक्सियल कॉइल, बोथ रेडियस आर आर, दो पैरेलल कोएक्सियल कॉइल हैं, एक ही एक्सिस पे दोनों डिपेंड करते हैं, एक का रेडियस आर, दोनों का रेडियस आर है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स n है और दोनों में करंट I है, एंड बोथ द करंट्स आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, सेपरेटेड बाय द स्मॉल r डिस्टेंस सो दैट द फील्ड एट द सेंटर विल बी दिस। उसने बोला है कि फील्ड एट द सेंटर बताना है कि इसके सेंटर में फील्ड क्या होगा। एक चीज ध्यान देना, ये हेल्महोल्ट्ज कॉइल के बारे में डिफाइन कर रहा है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल जो सेम सेंटर सेम डायरेक्शन, जैसे हमने पैरेलल वायर का केस पढ़ा था वैसे ही हेल्महोल्ट्ज कॉइल होता है, उस केस में भी हमारा ऐसे ही होता है। नाउ सी हियर, वी नो दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड। हमें यहाँ पर एक सिमिलर एक्सिस में दो कॉइल है और दोनों पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों में नंबर ऑफ टर्न सेम है, दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो बताना है कि इसके सेंटर में बीच में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। चलो पहले कॉइल फर्स्ट के लिए निकाल लेते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला। द फॉर्मूला फॉर कॉइल फर्स्ट इज हियर, B1 is equal to mu naught n I r square upon twice x square plus r square power 3/2। दिस वॉज द फॉर्मूला। एक कॉइल के सेंटर में फॉर्मूला हमारा ये होता है, कॉइल के सेंटर में अगर हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें ये फॉर्मूला होता है। अब हेल्महोल्ट्ज कॉइल के केस में क्या होता है कि एक के लिए जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, फॉर फर्स्ट कॉइल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू इट विल बी r/2 प्लस d, और सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू r/2 माइनस d। ये हम पुट करते हैं फर्स्ट के लिए और सेकेंड के लिए, x की वैल्यू हमारी ये होती है। चलो पुट करके देखते हैं कि हमारा ये सॉल्यूशन क्या आएगा। नाउ इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ ताकि डायरेक्टली हम लोग उसको पुट कर सकें। नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला टोटल मैग्नेटिक फील्ड विल बी हियर, टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 हो जाएगा। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इट विल बी हियर म्यू नॉट n I r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, r/2 माइनस d होल स्क्वायर with a long bracket plus r स्क्वायर पावर 3/2। ये पहले के लिए हो जाएगा। सेकंड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए मैग्नेटिक फील्ड
r/2 प्लस d हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस म्यू नॉट n i r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस इन ब्रैकेट r/2 प्लस d होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर 3/2. Now whatever is common here you need to take here. Then we are taking the common mu naught n I r square upon twice. We have taken common here. What is left here? 1 upon r/2 minus d whole square plus r square power 3/2 plus 1 upon r/2 plus d whole square plus r square power 3/2. दिस वी हैव गॉट हियर. अब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, निगेटिव पावर हो जाएगी. देन व्हाट विल बी हियर? इट विल बी हियर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2. हियर वी विल गेट r/2 माइनस डी होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर माइनस 3/2 प्लस r/2 प्लस डी होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर पावर माइनस 3/2. दैट वी हैव गॉट. अगर डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं तो हमारी पावर क्या हो जाती है? निगेटिव हो जाती है. नाउ ओपन विथ a माइनस बी होल स्क्वायर एंड a प्लस बी होल स्क्वायर. व्हाट वी विल गेट हियर? वी विल गेट हियर म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर बाई 2. वी विल गेट हियर r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस d स्क्वायर प्लस r इंटू डी प्लस r स्क्वायर पावर माइनस 3/2 एंड सेकेंड वन इज दिस विल बी माइनस r इंटू डी, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. नाउ प्लस अगेन हियर विल बी r स्क्वायर बाय 4 प्लस d स्क्वायर प्लस r इंटू डी प्लस r स्क्वायर पावर माइनस 3/2. ये हो गया. इसका बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लो तो आसानी से आप लोग इसको नोट कर सकते हो. टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ योर. ऊपर हम करते हैं यहाँ पे. नाउ इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे. नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? अगेन इट विल बी म्यू नॉट एन आई आर अपॉन 2 इन ब्रैकेट. टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर. इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 4 1 टाइम्स 4 प्लस 1 5r स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा ये. तो ये क्या हो जाएगा? 5r स्क्वायर अपॉन 4. हमारा r स्क्वायर का टर्म सिर्फ हमने लिया है. देन प्लस डी स्क्वायर माइनस आर डी पावर माइनस 3/2 प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट 5r स्क्वायर अपॉन 4 प्लस डी स्क्वायर प्लस आर डी power minus 3/2 is the bracket here. Now what we will do here? We will take 5r square by 4 common on both side. दोनों साइड से 5r square by 4 कॉमन ले लेंगे. नीचे रब कर देते हैं. Now what we will get here? We will get here again. It is here mu naught n I r by 2. We have taken 5r square by 4 common here, so we will get a minus 3/2. जब 5r square by 4 कॉमन ले लेंगे तो पूरा कॉमन हो जाएगा माइनस 3/2. यहाँ पे अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा? ये 1 हो जाएगा. एक और ब्रैकेट रहेगा 1 प्लस 5r स्क्वायर बाय 4 इसमें कॉमन हो गया. यहाँ पे ना r है ना 5r स्क्वायर बाय 4 कुछ भी नहीं है. तो ये क्या बचेगा अंदर? 4/5 डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. यहां से एक r कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा? माइनस 4/5 डी बाई आर पावर माइनस 3/2. ये चीज. इन द सेकेंड केस व्हाट विल बी लेफ्ट हियर? प्लस 1 प्लस 4/5 डी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 4/5 डी बाई आर पावर माइनस 3/2.
close the bracket. Now d square upon r square is a very small value, so these both can be neglected. बहुत छोटा इस वैल्यू हो गया, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे. So it will be a mu square n I r upon 2. Here is a 5 r square by 4 power minus 3 by 2. The value will be left here 1 plus, sorry, plus will not be here, it will be the minus 4 by 5 d by r power minus 3 by 2 plus 1 plus 4 by 5 d upon r power minus 3 by 2. This will be here. Now again we know from the binomial theorem 1 plus x पावर n होता है तो पावर सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा म्यू नॉट n i r अपॉन 2. इट विल बी 5 r स्क्वायर बाय 4 पावर माइनस 3 बाय 2. हियर वी विल गेट 1 माइनस माइनस प्लस विल बी 3 बाय 2, 3 बाय 2 इंटू 4 बाय 5 d बाई r. 3 by 2 पावर फ्रंट पे मल्टीप्लाई हो गई. Now here again we will get a plus 1 plus 1 minus will be a minus 3 by 2 into 4 by 5 d by r. Bracket is closed. Now cancel out. 2 and 2 times is gone here. 2 and 2 times is gone here. So solve it. Again mu naught n I upon r by 2 5 r square by 4 power minus 3 by 2, and here we will get 1 plus, open the bracket, 3 to just 6 by 5 d by r plus 1 minus 6 by 5 d by r. These both are cancelled out. Then 1 plus 1 will be 2. So it will be a mu naught n I upon r upon 2 5 r square by 4 power minus 3 by 2 into 2. 2 and 2 is cancelled out. Now beta take a screenshot of this so you will be able to easily do the solution here. स्क्रीनशॉट ले लो तो आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. इसको मैंने ऊपर रब कर दिया ताकि आगे सॉल्व कर पाए. थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन कई बार पूछा भी गया है इस तरह की डेरिवेशन इसमें से. सॉल्व इट. अगेन द फाइनल मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू म्यू नॉट n I r. नाउ सी हियर, इससे न्यूमेरिकल वैल्यू हमने बाहर कर लिया तो इट विल बी 5 by 4 पावर माइनस 3 by 2 इंटू r स्क्वायर पावर माइनस 3 by 2. 2 से 2 कैंसिल आउट. इसको पॉजिटिव पावर में कर लेंगे, इन्वर्स कर लेंगे. इट विल बी म्यू नॉट n I r इंटू 4 by 5 पावर 3 by 2 इंटू 1 अपॉन r क्यूब. हमने इन्वर्स कर लिया 1 अपॉन r क्यूब. नाउ लेट वी सी समथिंग इज मिसिंग हियर. यहाँ पे म्यू नॉट n I r स्क्वायर होता है. एक चीज को करेक्ट कर लेना, द म्यू नॉट I r स्क्वायर होता है यहाँ पे. ठीक है, r स्क्वायर एंड r क्यूब इज कैंसिल आउट. अगेन वी विल गेट हियर वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7. 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7 म्यू नॉट की वैल्यू. n की वैल्यू 1 होगी क्योंकि होल्स में नंबर ऑफ टर्न्स 1 होते हैं तो इसकी वैल्यू हमने 1 पुट कर दिया. द वैल्यू ऑफ, या फिर इसको n ही रहने दो, n I, क्योंकि हमें n के फॉर्म में ही प्रूव करना है. इसको हमें प्रूव करना है. वेट अ मिनट. म्यू नॉट की वैल्यू म्यू नॉट n I अपॉन r वी हैव गेट हियर 4 by 5 power 3 by 2. If we find 4 by 5 power 3 by 2, we will get near about 0.72 value. So the answer will be 0.72 into mu naught n I upon r, and this magnetic field we need to prove here. Okay, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करनी थी. तो एक बड़ा सा, थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन है, इसको पहले आप नोट कर लेना.
नोट करने के बाद एक बार समझना, फिर वीडियो देखना, फिर समझना, ईजिली समझ में आ जाएगा। ओके, सो आज की क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। बाकी के क्वेश्चन आप करना ट्राई करना, जो नहीं आएगा आप मुझे बताना, उस क्वेश्चन का वीडियो हम लोग एक बार फिर से मिलके नेक्स्ट लाइव क्लास में हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 5 होगा। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय बाय।